اعتماد یا عدم اعتماد، اس حوالے سے سما کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ منصور علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ منصور صاحب، اس وقت جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ خان سنبل چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتائے گا کہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس ڈیولپمنٹ کو اس تناظر میں آج کے حوالے سے؟ دیکھیے، جب سے پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی تھی تب سے ہی جو سابقہ چیف سیکرٹری پنجاب تھے کامران افضل صاحب، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ٹھیک طرح نہیں چل رہے تھے، اور کامران افضل صاحب جو ہیں انہوں نے اب تک تقریباً کوئی 105 دن کی لیوز جو ہیں وہ لے لی تھیں، اور سنبل صاحب جو ہیں انہوں نے قائم مقام چیف سیکرٹری کے طور پہ جو ہے اس عہدے کو سنبھالا ہوا تھا۔ اب جو تھوڑی دیر پہلے ہم ٹرانسمیشن میں پہلے بات کر رہے تھے، زیغم صاحب نے بھی ایک تذکرہ کیا تھا کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آپس میں طے ہو کے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو نئے چیف سیکرٹری کا یہ عہدہ سنبھالنا سنبل صاحب کی جانب سے، وہ بھی یہی لگتا ہے کہ شاید انہی معاملات کی طرف ہی ایک اشارہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہی آگے چلیں گے۔ لیکن افسوسناک مقام اس بات کا ہے کہ پچھلے 105 دن سے جب جو چیف سیکرٹری پنجاب تھے کامران افضل صاحب، انہوں نے اپنے عہدے کو سنبھالا نہیں ہوا، تو امور صوبہ جو ہے وہ کس طرح چل رہے تھے، بیوروکریسی کو کس طرح آپریٹ کیا جا رہا تھا، یہ ایک افسوسناک عمل ہے، اور جس کی وجہ سے اب اس کا جو سیاسی فال آؤٹ ہے وہ ہم آلریڈی پنجاب منصور صاحب بالکل آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ بالکل، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں اب سچویشن کس طرف جاری ہے؟ کیونکہ ابھی جو سچویشن لگ رہی ہے وہ ہینگ آن کی سی صورتحال ہے، یہ سچویشن بن رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کی طرف چلا جائے۔ دیکھیے، یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ پچھلے جب سے معاملات شروع ہوئے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے سیاست میں، تو ہر ایک چیز عدالت کے پاس ہی جا رہی ہے۔ تو عدالت میرے خیال میں زیادہ سیاسی جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کر رہی ہے بجائے دوسرے۔ بہرحال تو اب یہ بھی جائے گا عدالت میں یقیناً، کیونکہ جو جس طرح سے چل رہا ہے معاملہ، جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا ہوا ہے گورنر کو، وہ گورنر صاحب تو نہیں دیں گے، وہ چیف منسٹر صاحب تو نہیں کریں گے کال، اسپیکر کال نہیں کرے گا اسمبلی کو، تو بعض صورت تو وہ یقیناً ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملے گا ان کو۔ اس صورت میں جو آئین کی شک ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے، وہ صاف کہتی ہے کہ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے تو اس وجہ سے اس کے بعد ہی ول سیز ٹو بی دا چیف منسٹر، یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کرتے جو گورنر صاحب نے کہا ہے، اور گورنر اور جو یہ بھی ہے اس پرٹیکولر شک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے the chief minister is there at the pleasure of the governor. So the governor اگر نہیں اس کو دیتے، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیتے، تو پھر وہ he will cease to be the chief minister، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گی، ان کی چیف منسٹر نہیں رہیں گے، یہ میرے خیال میں یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو کارروائی ہوگی وہ کورٹ پہ جائے گی، یقیناً وہ کورٹ میں جائیں گے، اور کورٹ میں جا کر کے فیصلہ بعد میں کورٹ والے کریں گے۔ ٹھیک ہے، منصور علی خان صاحب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اب عثمانی صاحب بہت شکریہ۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ستین خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنر کی جانب سے آنے والی یہ جو ہدایت ہے اور یہ جو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ عمل ہی ایکچولی غیر قانونی ہے۔ تو کیا اسپیکر اس کو اوور رول کر سکتے ہیں گورنر کی اس ہدایت کو؟ گورنر تو اوور رول نہیں کر سکتا، لیکن آئین تو کر سکتا ہے نا۔ آئین جو ہے سب پر فوقیت ہے، ہر ایک چیز پر، ہر قانون، ہر پروسیجر، ہر ایک چیز پر آئین کی جو شک ہے اس کی فوقیت ہے۔ اور آئین کی جو شک اگر آپ پڑھیں کتنی کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں شرح سے۔ تو اس صورت میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دا گورنر شیل سمن دا ہاؤس، لکھا ہوا ہے سمن دا ہاؤس، ان کو اسپیکر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ان کو، تو وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ کانسیکوینسز جو ہوں گے ان کو فیس کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ اس سے خوش نہیں رہیں گے چیف منسٹر صاحب، تو ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور پھر کورٹ فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور عثمانی صاحب اس میں جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اگر ہاؤس پروسیڈنگز میں ہو تو اس دوران گورنر جو ہے وہ سیشن کو کال نہیں کر سکتے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا نا آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا یہ کہ گورنر کال نہیں کر سکتا جب وہ ہاؤس چل رہا ہو، وہ جو سیشن چل رہا ہو، یہ تو کہیں لکھا ہوا آئین میں یہ جو پروویژن ہے اس کی جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی، وہ بالکل سیپریٹ ہے اور اس اپنی جگہ پر ہے وہ، اور جہاں پہ اسپیکر کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ گورنر جو ہے وہ
उनसे कह सकता है कि आप वोट अपना दिखाएं कि आपके पास एतमाद है हाउस का, और अगर वो नहीं दिखा सकते उस सूरत में ही विल सीज टू होल्ड ऑफिस, ये साफ लिखा हुआ। तो उस्मानी साहब जानना ये चाह रहे हैं कि फिर इस्तेहकाम किस तरह से आए, जिस जानिब ये चल पड़ा है एक मामला और ये प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है, तो इस्तेहकाम किस तरह से लाया जाए फिर मुल्क में? इस्तेहकाम तो अब नहीं आ सकता ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल की जो सियासत है पिछले साल से, वो इस किस्म की सियासत है कि मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तो इस मुल्क में पिछले 70-75 साल से रह रहा हूँ, मैं तो नहीं देखी है ऐसी चीजें। तो अब ये जो चल रहा है कॉन्फ्रंटेशन, हर एक आदमी जो है वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है दोनों साइड से, मैं एक साइड को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, दोनों साइड से। तो उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट फैसला करती है। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये उस्मानी साहब ये बताइए कि अभी 4 बजे का टाइम दिया गया है, 4 बजे तक अगर ये एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं कि द चीफ मिनिस्टर विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद सर क्या होगा? मैं अभी कानूनी मामला की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कानूनी मामला की बात नहीं कर सर। उसके बाद हाउस को नया जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना पड़ेगा इन स्टिपुलेटेड टाइम। वो मेरी नजर में जो होगा वो ये कि गवर्नर साहब जो है वो फिर एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, जो उनकी पावर्स हैं, क्योंकि द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। वो एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे और कहेंगे कि ही इज नो लॉन्गर द चीफ मिनिस्टर, और वो कहेंगे कि नाउ न्यू चीफ मिनिस्टर शुड बी इलेक्टेड। तो न्यू चीफ मिनिस्टर के लिए फिर वो हाउस कॉल करना पड़ेगा, इनको सेशन कॉल करना पड़ेगा। और सर इसके लिए जितनी देर तक सेशन कॉल नहीं होता और नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, इतनी देर तक बतौर निगरान वजीर आला वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा कि जी वो बतौर निगरान वजीर आला भी काम नहीं कर सकते, कि वो जब तक कि नया चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा वो बरकरार रहेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है, तख्त लाहौर की ये जंग है, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमारा पैनल भी हमारे साथ ही मौजूद था और वक्त थोड़ा कम रह गया है, हम ब्रेक तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक। तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार, पंजाब में सियासी बहरान संगीन, सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर हैं। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, अदम एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होगा या नहीं, 2 घंटे बाकी रह गए हैं। माहिर कानून और साबिक जज शाइक उस्मानी के मुताबिक परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो वजीर आला नहीं रहेंगे, जबकि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर इजलास नहीं बुला सकता। 4 बजे तक एतमाद का वोट ना लिया तो हाउस नया वजीर आला मुंतखब कर देगा। जब तक नया वजीर आला नहीं आएगा परवेज इलाही ही बरकरार रहेंगे। दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल पर अहम राबतों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अहम सवाल यही है कि तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार, पंजाब में सियासी बहरान संगीन होता जा रहा है। सबकी नजरें अब पंजाब असेंबली पर लगी हुई हैं। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होगा या नहीं, आज 4 बजे के बाद होने क्या जा रहा है। 2 घंटे बाकी रह गए। माहिर कानून और साबिक जज शाइक उस्मानी का कहना है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। आइन में ये कहीं नहीं लिखा है कि गवर्नर इजलास नहीं बुला सकता। 4 बजे तक एतमाद का वोट ना लिया तो हाउस नया वज़ीर आला मुंतखब करेगा। जब तक नया वज़ीर आला नहीं आएगा परवेज इलाही बरकरार रहेंगे। और दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल पर अहम राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इबहम का शिकार हो रही है। हम आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अब होने क्या जा रहा है। 2 घंटे बाकी रह गए हैं। शाइक उस्मानी साहब क्या कह रहे थे, हम आपको सुनवाते हैं। जाएगा अदालत में यकीनन, क्योंकि जो जिस तरह से चल रहा है मामला, जो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा हुआ है गवर्नर को, वो गवर्नर साहब तो नहीं देंगे, वो चीफ मिनिस्टर साहब तो नहीं करेंगे कॉल, स्पीकर कॉल नहीं करेगा असेंबली को। तो बार सूरत तो वो यकीनन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा उनको। उस सूरत में जो आइन की शिक है वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो साफ कहती है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो उस वजह से उसके बाद ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, ये साफ लिखा हुआ है। तो अगर वो नहीं करते जो गवर्नर साहब ने कहा है, और गवर्नर और जो ये भी है उस पर्टिकुलर शिप में ये भी लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर इज देयर एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सो द गवर्नर अगर नहीं उसको देते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो फिर वो ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, मामला खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद
نوٹیفिकेशन इशू हो जाएगी, उनकी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ये मेरे ख्याल में ये होगा. अब उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट में जाएगी, यकीनन वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर के फैसला बाद में कोर्ट वाले करेंगे. तो आपको बता रहे हैं कि राबतों का और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है. बड़ा अहम इजलास 4 बजे का कहा गया है कि 4 बजे ये इजलास होगा, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आया ये इजलास होगा भी या नहीं. हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब, उनको वेलकम करेंगे. कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. सबसे पहले मैं यही जानना चाह रही हूँ कि यकीनी तौर पर ये सूरत हाल आपके सामने है. अब एतमाद या अदम एतमाद का मामला हो तो इजलास गवर्नर बुला सकता है और गवर्नर के बुलाए गए इजलास को स्पीकर रोक नहीं सकता. वफाकी हुकूमत की जाने से तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है. आपकी नज़र में क्या अहमियत है इसकी? जब स्पीकर ने इसमें जो कहा है कि जो इजलास नहीं जो है होगा आज, तो वो गलत कहा है, वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी में शुमार होगा. गवर्नर ने इजलास बुलवाया बावजूद इसके कि इससे पहले इजलास चल रहा था, मगर इसको एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए उन्होंने इजलास को कन्वीन किया, तो उसमें इजलास होना चाहिए. और अगर उनके ओपिनियन में ये है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आप फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए. हाँ, ये अलग बात है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर फेल होता है या कैरी हो जाता है, दोनों सूत्रों में वो चैलेंज हो सकता है. उसमें भुट्टो साहब वाली जो है वो स्टेटमेंट को भी दोबारा कंसिडर किया जा सकता है, रिविजिट भी किया जा सकता है, कंसिडर भी किया जा सकता है. मगर इजलास का न बुलाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि गैर दस्तूरी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. और उसके नतीजे में अगर सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इजलास नहीं बुलाया जाता या इस बात पर अमल नहीं किया जाता, तो फिर क्या होगा आगे? फिर दस्तूर तो इसका डायरेक्ट जवाब नहीं देता, मगर रूल्स आपके जवाब देते हैं. और उसका नतीजा ये होगा कि इजलास नहीं होता या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते सिटिंग सीएम साहब, तो फिर एक प्रिजम्पशन ड्रा होगी. और वो प्रिजम्पशन ये होगी कि वो वोट उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी होल्ड नहीं कर रहा है. उसका नतीजा ये मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि वो डी नोटिफाई हो जाए और उसके बाद जो है नए सीएम के इंतखाब की तरफ मामला चला जाए. वो अल्टीमेटली बहरहाल ये सारा कुछ जो है अदालतों में जाएगा, मगर ये इम्कानात जो है वो ये सारे इस बात की तरफ जाते हैं. अच्छा सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये मामला जो है वो फिर अदालतों की तरफ जाएंगे, तो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी यही कह रहे थे कि अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो नया वज़ीर आला है वो तब तक वो नहीं आएंगे, परवेज़ इलाही फिर कंसेक्टिवली बरकरार रहेंगे. इसके ऊपर फिर क्या होगा सर? देखिए, वो बरकरार तो यकीनन रह सकते हैं. उनको कहा जा सकता है कि आप कंटिन्यू करें उस वक्त तक जब नया को ना हो जाए, मगर फिर अगले चंद दिन में नया वज़ीर आला का भी इंतखाब हो जाएगा. और वो नया इंतखाब जो है उसमें या तो पहले सिंपल मेजॉरिटी अपना जाहिर करनी पड़ेगी, या फिर अगर एक दफा में अगर कोई फर्ज कर लीजिए 2 से ज्यादा कैंडिडेट हो गए और उसमें कोई वो मेजॉरिटी ना बता सके, तो फिर देन जो है ना फिर दोबारा से इलेक्शन होगा. मगर जो है ना ये मामला जो है वो सारे के सारे वो अदालत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं. सही, ठीक है. हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, पैनल हमारे साथ ही मौजूद है. आयशा बख्श ने भी ज्वाइन किया है, मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद थे ब्रेक से पहले भी. आयशा, पहले पीएम का मसला अटका हुआ था, वो रिजॉल्व हुआ, तो अब सीएम का मसला यहाँ पर अटका हुआ है. किस तरह से देख रही हैं सिचुएशन को आप? पाकिस्तान में आखिर इस तरह की सियासत कब तक चलती रहेगी और आखिर इसका हल क्या है? बहुत शुक्रिया. कब तक चलती रहेगी इसको तो फिलहाल बात के लिए उठा रखते हैं, मगर जो इस वक्त हो रहा है गुज़िश्ता 8-10 माह से, ये वाकई एक मजाक बना दिया गया है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और हमने देख रहे हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो सूरत हाल बनी हुई है, वजीर आला बनने का भी शौक है, वजारत आला होते हुए अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तब भी आप इजलास चलाए हुए हैं. 2 माह से जायद अभी इजलास जो मुस्तकिल चल रहा है अक्टूबर से, और आप साबित भी नहीं करना चाहते कि आप मैंडेट रख रहे हैं कि नहीं. दूसरी तरफ अगर आप मैंडेट है, आपको वजीर आला रहने का शौक नहीं मगर आपको असेंबली तहलील करने का शौक है. तजादात से भरपूर सियासत है. अपोजिशन जो कि पंजाब में है या हुकूमती इत्तेहाद जो वफाक का है, वो चाहता है कि निज़ाम चल जाए, असेंबलियां अपना वक्त या मुद्दत पूरी कर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं. दूसरी तरफ पीटीआई, सिर्फ पीटीआई इस वक्त ये चाह रही है कि असेंबली, बल्कि पीटीआई भी ना कहिए, यूं कहिए कि इमरान खान साहब सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये असेंबलियां तहलील की जाएं. और मेरा ये ख्याल है दिल से वो भी नहीं चाहते कि असेंबली तहलील की जाए, क्योंकि जो मजे असेंबली पास होते हुए मिलते हैं, जब 2013 से 18 वो केपी में थे तो बार बार केपी हुकूमत के रिसोर्सेज पर वफाक पर चढ़ाई करते थे, और अब जबकि वो वफाक से चले गए हैं तो इन 2 सूबों को इस्तेमाल कर रहे हैं जहां सैलाब गुजर गया, जहां केपी के अंदर दहशतगर्दी के हालात हैं, मगर रिसोर्सेज कहां इस्तेमाल हो रहे हैं 60 से ज्यादा जलसे करने पर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देने पर. क्या इमरान खान साहब ये हक रखते हैं कि जब वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं खुद को समझते तो इन प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करें? मगर नहीं.
अब अगर आप समझते हैं कि आपके पास मैंडेट है तो आप साबित कर दें, 186 है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास है, आप साबित करें। आप असेंबली तहलील करने का शौक रखते हैं, जी नहीं, आप दबाव डालना चाहते हैं निजाम पर और आप डील करना चाहते हैं निजाम के साथ कि मुझे कोई ना कोई डील दे दें। डील नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे जिसे कहते हैं ना कि एक चेहरा आपका जो है फेस सेविंग वो किसी तरीके की मिल जाए कि जो मैंने नारा लगाया था, जो मैंने बयानिया बनाया था, उसकी जीत हो गई है। हालांकि वो भी एक्सपोज हो गई है पूरी सूरत हाल पिछले 8-10 महीने में कि जहां से बयानिया शुरू हुआ, अमरीकी साजिश से लेकर अपने इदारों को गाली देने से लेकर आज जहां खड़े हैं तो कहते हैं आज तो न्यूट्रल चाहिए सब कुछ, आज तो मामला उस तरह चाहिए जैसा अप्रैल में चाहिए था, उससे बरअक्स। बात ये नहीं है, आप सियासत में, ये तो हम हंसते हैं बात करते हुए अक्सर औकात, क्या इखलाकियात की बात करते हो सियासत में, क्या लीडरशिप सिखा रही है कौम को, क्या बताना चाह रही है। सब एक तरफ रखते हुए इमरान खान साहब जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं उतना ज्यादा अपने बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शॉर्टर टर्म में जिस वक्त पूरा मामला शुरू हुआ शायद उन्हें फायदा हुआ, बट इन अ लॉन्गर रन इमरान खान साहब अगर अब इससे ज्यादा आगे चीजों को लेके जाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में इससे कहीं ज्यादा नुकसान उठाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप असेंबली के अंदर मामला हल होने दें, असेंबली को इज्जत दें, पार्लियामान को इज्जत दें, जमहूरियत को इज्जत दें। इस तरीके से कि आप दबाव पर आज कुछ हासिल कर लेंगे शायद अब मुमकिन नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आयशा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपको असेंबली को इज्जत देनी चाहिए। आप अपने मामला जो है बैठ के सही तरीके से हल करें, इस तरीके से ये मामला रिजॉल्व नहीं होंगे। अहमद बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर क्या देख रहे हैं, सिचुएशन किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए सिचुएशन तो अदालतों की तरफ ही जा रही है। अच्छा, जिस तरह की कन्फ्रंटेशन हो रही है उसके नतीजे में असेंबलियों के अंदर तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपस का तसादुम है वो असेंबलियों को बतौर असेंबली के इस्तेमाल करने का तो मौका ही नहीं दे रहा। उसमें तो आप अपनी ईगोज की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर जाहिर है दोनों दूसरे के साथ डिस्प्यूट में है तो फिर अल्टीमेटली अदालतों में जाएगा, अदालत में एक में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा। वो चीज़ें इसी तरह से ही इनडिसाइसिवली और गैर यकीनी की सूरत हाल में फंसी रहेंगी, जिसमें हमारी इकॉनमी भी मजीद बद से बदतर होती चली जाएगी। तो ये मुझे हालात इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अदालतें भी मेहरबानी करें, जब उनके पास आए तो बड़ी क्विकली अगर उसको एडजुडिकेट कर दें तो भी बहुत गनीमत होगा। लेकिन उन्होंने भी इसको लटका दिया तो फिर तो और अनसर्टेनिटी का पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, आयशा और मंसूर भी हमारे साथ महबूब साहब, बिल्कुल मैं यही कह रही थी कि आप भी सवाल कर सकती हैं। चाहूंगी जब आप ये कह रहे हैं कि अदालतें वापस भेज दें, सर तो फिर हल कौन निकालेगा? क्योंकि अगर ये इस काबिल होते लेते तो बात अदालत तक तो जाती ही ना, और अगर वापस इनके पास भेज दिया गया तो इसका तो मतलब है सुबह बिल्कुल स्टैंड स्टिल में चला जाए, कोई मामला आगे ना बढ़ सके। नहीं, वापस भेजने से मेरी मुराद ये कि फैसला कर दें, फैसला करके वापस भेज दें, एडजुडिकेट कर दें, तय कर दें कि ये मिसाल के तौर से इस वक्त डिस्प्यूट है कि गवर्नर साहब को क्या ये हक हासिल था कि वो चीफ मिनिस्टर से कहते कि एतमाद का वोट लें, और स्पीकर साहब कहते नहीं, उन्हें ये गैर कानूनी है। तो इस पे फैसला करके भेज दें कि हाँ ये गैर कानूनी है, क्या ये गवर्नर साहब को हक हासिल है, क्विकली इस पे फैसला कर दें। ठीक है, मंसूर अली खान साहब, आपकी इसमें क्या राय है? फैसले की नजीर सर कौमी असेंबली के तर्ज का फैसला हमारे सामने आ सकता है? जी सॉरी जी मंसूर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि सर आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? क्या गवर्नर ये कह सकते हैं जब एक सेशन चल रहा हो तो उस दौरान कह सकते हैं कि जनाब आप एतमाद का वोट हासिल करें? जी बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये बात तो पाबंदी नहीं लगाई गवर्नर के ऊपर कि वो सेशन के दौरान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकता। गवर्नर के ऊपर ये आज़ादी है कि वो समन करे असेंबली को ताकि चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट लें। तो कब वो समन करेंगे ये डेट भी वो खुद ही डिटरमिन करेंगे, तो ये उनके पास इख्तियार है। बल्कि मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो निज़ाम है वो इस बात को शायद फोर्स ही कर रहा था कि जब ऐसा कोई गवर्नर करेगा तो चीफ मिनिस्टर आसानी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उनके जो असेंबली के रूल्स हैं उसमें रूल 22 में लिखा हुआ है कि अगर कोई वजीर आला इवेड करे या रेफरेन करे, रेफरेन का लफ्ज है एतमाद का वोट लेने से, तो फिर यही समझा जाएगा कि उसको मेजॉरिटी का एतमाद हासिल नहीं है। तो आज अगर फॉर एग्जाम्पल
असम्बली का सेशन नहीं होता तो उसका मतलब लाजमी यही लिया जाएगा कि वो रेफरेन कर रहा है, उस सूरत में उसका मतलब यही होगा कि उन्हें एतमाद नहीं है मेजॉरिटी का। तो मेरी जाती राय तो यह है कि गवर्नर को यह हक हासिल है और उनके हक हासिल होने की बुनियाद पे इसके ऊपर आज बहुत सिंपल था कि आके अपनी मेजॉरिटी शो करते हुए। बुनियादी बात तो यही है कि आप चीफ मिनिस्टर उसी वक्त तक कहें जब तो आपको मेजॉरिटी हासिल है, नहीं है तो फिर आप नहीं है। तो अब ये कहते क्या है और ये कानून और आइन का मेरे ख्याल में दुरुस्त इस्तेमाल। और बिलाल साहब इसमें ये भी बता दीजिए कि अगर मैं मतलब जाहिर बात है अब तकरीबन कोई 1.25 घंटे का टाइम सिर्फ रह गया है, 4 बजे अगर ये सेशन नहीं होता और 4 बजे एतमाद का वोट हासिल नहीं किया जाता तो ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि 4:01 के ऊपर परवेज इलाही साहब जो हैं वो सीएम नहीं रहेंगे, उनके पास जो प्रोटोकॉल है, सीएम हाउस का एक्सेस है, वो उनसे लिया जाना जो है वो कानूनी होगा? ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा कि 4:01 पे ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए। शायद अमूमन चूंकि इजलास बुलाया ही नहीं गया लिहाजा इजलास होने का चांस तो कम है, लेकिन गवर्नर साहब शायद चंद घंटे मजीद इंतजार करेंगे तो फिर गवर्नर साहब को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि उनकी राय में वजीर आला को मेजॉरिटी का एतमाद हासिल नहीं है और उसकी वजूहत वो तहरीर करेंगे, जिसमें इससे ये भी होगा कि उन्होंने रेफरेन किया है आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। तो उसके नतीजे में जब वो डिक्लेयर कर देंगे कि उनके पास एतमाद का वोट नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उसके मुताबिक एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें से एक ये भी होगा कि प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाए, वो अपने दफ्तर न जाए। अब उसमें खींचातानी हो सकती है, इस दौरान अदालत में भी जाया जा सकता है। जी तो ये तो डिपेंड करेगा। बिल्कुल डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। आपको बताएं कि नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पंजाब के मामले में इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ मुत्तफिका फैसले करने की हिदायत भी की गई है। मुल्की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। तो ये अहम टेलीफोनिक राब्ता है। इस सिचुएशन में नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पंजाब के मामले में इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ मुत्तफिका फैसले करने की हिदायत की गई है, जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। अब लेट्स सी कि जो गुफ्तगू हुई है, आम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, इसमें क्या हिदायत की गई है, आज के हवाले से पंजाब में बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पंजाब के मामले में इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ मुत्तफिका फैसले करने की हिदायत भी की गई है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब आप बात करते, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं अहमद बिलाल साहब से यही मैं सवाल कर रहा था कि जब वो बता रहे थे कि गवर्नर जो है वो नोटिफिकेशन निकालेंगे और वो बताएंगे कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के पास जो है वो अब मेजॉरिटी नहीं रही, इसलिए सीएम का इख्तियार उनके पास नहीं रहा। चूंकि सीएम का इख्तियार उनके पास नहीं रहा तो असेंबलियां तहलील करने की वो जो समरी है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी। लेकिन अहमद बिलाल साहब क्या मंसूर साहब, अहमद बिलाल साहब नहीं है इस वक्त हमारे साथ। अच्छा, अहमद बिलाल साहब नहीं है। मैं वैसे सिर्फ एक जो सवाल पुट करने लगा था वो ये था कि परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने असेंबली तहलील करने की जो समरी है वो पहले ही साइन कर दी है, तो पहले से साइन की हुई समरी जो है वो क्या वैलिड रहती है या नहीं रहती, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जाहिर बात है ये कानूनी जंग होने जा रही है, इसमें बहुत से नुक्स एंड कॉर्नर्स को जो है चेक करना पड़ेगा कि किसके पास क्या मैंडेट था या नहीं था। लेकिन हमारे पास एक जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये भी है कि सीएम हाउस के पास जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात, अब अगर वो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहते हैं परवेज इलाही साहब तो हम सीएम हाउस को जो है वो सील कर देंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग अपने किसी रिपोर्टर से भी इसको कंफर्म कर सके, मेरे पास ये खबर आ रही है कि सीएम हाउस के पास जो है वो कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, यकीनी तौर पर आपके पास ये खबर आ रही है तो सही दुरुस्त खबर होगी। हम कोशिश भी करेंगे किसी रिपोर्टर से भी रब्ता करें। आयशा, इससे कबल आप बात कर रही थी, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, सॉरी फॉर दैट, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। देखिए, इस वक्त जो मंसूर बात कर रहे हैं और जो अहमद बिलाल साहब भी बात कर रहे हैं, मामला सियासतदानों के हाथ से निकल गया हुआ है। अगर ये खुद तय ना कर सके तो सियासी अदम इस्तेहकाम को, मेरी ये ख्याल है इस वक्त जहां हालात जा रहे हैं, ज्यादा लिंगर ऑन अब ये नहीं होगा यहाँ से आगे। अब की बार जो फैसला होगा फिर वो हतमी होगा और वो निजाम को चलाएगा अगले चंद माह के लिए, अगर कोई फैसला हो जाता है। अभी इस वक्त आप अगर हालिया दिनों में देखें, जो तहरीर जमा कराया गया इत्तेमाद के लिए समरी दी गई गवर्नर की जानिब से, जिसको स्पीकर जो है, स्पीकर मैं कह रही हूँ, जो हमारे सेक्रेटरी असेंबली हैं, जिन्होंने रात 9:45 बजे वसूल किया है,
वो बड़ा अहम सवालिया निशान बनता है कि क्या परवेज इलाही साहब राइट नाउ दोनों तरफ से खेल रहे हैं, दोनों तरफ डील करना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से मामलात का हल और दोनों तरफ यकीन दहानी कराना चाह रहे हैं, क्योंकि सेक्रेटरी असेंबली का उससे वसूल करना रात गए, जबकि इजलास 2-2.5 घंटे पहले मुअत्तल हो चुका था अगली वक्त तक के लिए। तो ये तय कर रहा है कि परवेज इलाही साहब अभी तक खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं और कोई पता नहीं वो किसको सरप्राइज कर दें और किसके साथ जा खड़े हो। अगर मंसूर जो बात कर रहे हैं, अगर परवेज इलाही साहब कूल एंड काम है इस तमाम सिचुएशन के अंदर और वो देखेंगे कि तेल देखो, तेल की धार देखो, जिधर मामला जाएगा मैं स्पेस बना लूंगा, तो इस वक्त फैसला कुन किरदार वो अदा कर रहे हैं पर्दे के पीछे। पर्दे के सामने जो कुछ हो रहा है वो हमें कहीं और जाता नजर आ रहा है, वो फिर यकीनी तौर पर अदालतों तक मामले को लेकर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं आप आयशा। मंसूर साहब, जिस तरीके से आयशा बात कर रही हैं कि परवेज इलाही जो है वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, और हमने माजी में भी देखा है मंसूर साहब कि परवेज इलाही बड़े जीरक किस्म के सियासतदान हैं। उनके फैसले जो होते हैं वो अचानक से कभी सामने आते हैं, कभी वो किसी तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं, कभी किसी तरफ। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या वाकई परवेज इलाही पिच के दोनों इतराफ खेल रहे हैं, कुछ सरप्राइजेस उनकी जानिब से भी आ सकते हैं? ये आयशा बख्श साहिबा जो है ना, इनकी आदत है हर चीज के अंदर शक व शुबात पैदा कर देना है। इनके इस तज्जिये के ऊपर जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा। परवेज इलाही साहब की जानिब से अगर एक आईनी काम हो गया है कि तहरीक अदम इत्तेमाद को रात गए उस पहर के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया गया उनके सेक्रेटरी की जानिब से, असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप उसके अंदर भी शक की निगाह से उसको देख रहे हैं कि क्यों एक्सेप्ट कर दिया गया, ऐसा क्या हुआ है। उनकी पर्सनैलिटी भी तो ऐसी है ना। और मंसूर साहब ये सवालात उठाए भी गए, पीटीआई की जानिब से भी सवालात उठाए गए। नहीं, मैं ये बात मानता हूं कि परवेज इलाही साहब का अगर माजी उठा के देखें तो रात के वक्त उन्होंने जब वो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक चलिए बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते हैं मंसूर साहब।